معنی سے لب ہو خاموش تو چہرہ ضرور بولے گا. کون یہ کر رہا تھا؟ یہ رب ہیں. کہاں حق بھی ادا نہیں ہوتا؟ کون نہیں؟ کتاب کا نام صحیح مسلم، کتاب کا نام صحیح مسلم، صفحہ نمبر 102، قبلہ لائن نمبر 9. کتاب کا نام صحیح مسلم. اب میں واقعہ پڑھنے جا رہا ہوں کہ حق ادا کیوں نہیں ہو پاتا. اگر اس کتاب میں نہ ہو اور میں پڑھ رہا ہوں تو بھاگلپور والوں میں صحیح مسلم نہیں. اور کتاب میں ہو اور کوئی بندہ نہ مانے تو وہ صحیح مسلم نہیں. ہائے ہائے کیا سنا ہے یار. کتاب کا نام ہے صحیح مسلم. اگر اس میں ہو اور کوئی بندہ نہ مانے تو وہ صحیح مسلم نہیں، اور نہ ہو اور میں پڑھ رہا ہوں تو میں صحیح مسلم نہیں. چھٹے امام کا صحابی زید بن موسیٰ امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد فرمایا، اب میری طرف آپ متوجہ رہ جائیے. آنے والا صحابی امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد فرمایا، مولا میں اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر ان کی تمنا کو پورا کرتا ہوں. امام نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر عنایت فرمائے. جملے کی قدر کیجیے گا. آنے والے نے کہا مولا آپ سمجھے نہیں. امام نے نگاہ ڈالی، میں سمجھا نہیں تو سمجھا سکا نہیں. مولا غلطی ہو گئی. مولا میں اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر ان کی تمنا کو پورا کرتا ہوں. امام نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر عنایت فرمائے. آواز آ رہی ہے نا؟ امام نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر عنایت فرمائے. آنے والے نے ایک مرتبہ سر میں ہاتھ پھیرا اور کہا مولا میں یہ کام عرصے سے کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ جا میں تجھے زیادہ دعا یہ دے سکتا ہوں کہ اللہ تجھے نبی کا پڑوسی بنائے. ذہنوں کو تو لے جائیے. اللہ تمہیں نبی کا پڑوسی بنائے. آنے والے نے کہا مولا مجھے پڑوسی نہیں بننا. کہا پھر کہا مولا آپ سے دعا چاہیے اور حق ادا ہونے کا صلہ چاہیے. آنے والے نے کہا مولا میں اپنے والدین کو چہرے کو دیکھ کر ان کی تمنا کو پورا کرتا ہوں. امام نے فرمایا اللہ تمہیں جزائے خیر عنایت فرمائے. آنے والے نے کہا مولا میں یہ کام عرصے سے کر رہا ہوں. امام نے فرمایا اللہ تمہیں نبی کا پڑوسی جنت میں بنائے. آنے والے نے طلب کے کہا مولا میں یہ کام عرصے سے کر رہا ہوں. مولا کیا حق ادا ہو گیا؟ امام نے مسکرا کے کہا زید بن موسیٰ تصور میں تمہاری زندگی تھی. بزرگ بیٹھے ہیں مجھے داد نہیں چاہیے. خدا کی قسم میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تجربے کے لیے پڑھ رہا ہوں. میرے مولا نے فرمایا کہ جب وہ تمہیں پال رہے تھے تو ان کے تصور میں تمہاری زندگی تھی. میرا بیٹا بھی اور بڑا ہوگا، میرا بیٹا بھی اور بڑا ہوگا، میرا بیٹا بھی اور بڑا ہوگا. لیکن بزرگ بیٹھے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے بتائیں جب یہ اپنے بچے کو پال رہے تھے تو ان کے تصور میں موت تھی کہ میرا بیٹا اب مر جائے گا، اب مر جائے گا، اب مر جائے گا، اب مر جائے گا. نہیں، بلکہ باپ جب اپنے بیٹے کو پالتا ہے تو سوچتا ہے میرا بیٹا بھی اور جمع ہوگا، میرا بیٹا بھی اور بڑا ہوگا، میرا بیٹا بھی اور بڑا ہوگا. لیکن جب وہی بیٹا باپ کو پالنے لگتا ہے تو اب کیا ہے، اب بیٹا یہ سوچتا ہے پتہ نہیں میرا باپ کب مر جائے، پتہ نہیں میرا باپ کب مر جائے. ایمانداری سے بتائیے بزرگ
कि मेरा बाप अभी और बूढ़ा होगा, मेरा बाप अभी और बूढ़ा होगा, मेरा बाप अभी और बूढ़ा होगा। ये लफ्ज़ उर्दू कंगाल है, वरना बूढ़ा हमारे यहाँ है ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बुजुर्ग है, इसलिए कि बूढ़ा तो अबू लहब अबू जहल हुआ करता है, बुजुर्ग जनाब अबू तालिब हुआ करते हैं। नारे हैदरी घराने का। इसलिए और याद रखिएगा नौजवानों, एक जाकिर अपने मिंबर का हक अदा कर सकता है, एक सामईन अपने जाकिर का हक अदा कर सकता है, एक जाकिर अपने सामईन का हक अदा कर सकता है, एक मकान मालिक अपने किराएदार का हक अदा कर सकता है, एक किराएदार अपने मकान मालिक का हक अदा कर सकता है, एक पड़ोसी अपने पड़ोसी का हक अदा कर सकता है, एक भाई अपने बहन का हक अदा कर सकता है, एक बहन अपने भाई का हक अदा कर सकती है, एक मकान मालिक अपने किराएदार का हक अदा कर सकता है, एक किराएदार अपने मकान मालिक का हक अदा कर सकता है, एक शागिर्द अपने उस्ताद का हक अदा कर सकता है, एक उस्ताद अपने शागिर्द का हक अदा कर सकता है। लेकिन वालिदैन का हक अदा ही नहीं हो पाता। अल्लाह अकबर, ये वालिदैन हैं, इनका हक अदा ही नहीं हो पाता। माबूद हक अदा क्यों नहीं हो पाता? अजब नहीं, कुदरत एक मर्तबा मुस्कुराई और देखिए मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दिया है। अभी तक मैं चाह रहा था कि इन समस्याएं पे आ जाऊं, लेकिन अब अंदर से जी जा रहा है कि कलेजे को निकाल के आपकी हथेलियों पे रखूं और अपने मौला का चढ़ा हुआ चूल्हा उनके कांटारों तक पहुंचाऊं। मेरे मौला ने नबी बलागा में इरशाद फरमाया, मैं इस तरीके से आगे बढ़ते हुए चला जा रहा हूँ। फरमाया कि हमने इसलिए अपने वालिदैन को रब कहा क्योंकि इनकी आदत में तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, इनकी फितरत में तुम्हारी मोहब्बत है। इससे बड़ा मैं जुमला कह नहीं सकता था। आदतें अलग होती हैं, फितरतें भाई। ये हिंदुस्तान का ओपन यूनिवर्सिटी नहीं है, ये हुसैन का ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आने का हर मिजाज के तालिब इल्म को जरूरी है। और देखिए, दाद तो मैं नहीं दूंगा, वो मेरा हक है। बुजुर्ग माफ करेंगे इसलिए कि ये अपने जमाने के खतीबों को दाद दे चुके, खतीब अकबर मिर्जा अब्बास साहब, ताहिर जरमनी साहब, लेकिन मैं नौजवानों के जमाने का खतीब हूँ, मैं नौजवानों के जमाने का खतीब हूँ। और बीबी ज़हरा ने बताया है कि हक लेने कैसे जाया करेगा। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि इनका हक अदा नहीं हो पाता। क्यों अदा हो पाता? क्योंकि हमने आदत में मोहब्बत नहीं रखी है, फितरत में मोहब्बत रखी है। अब आदत और फितरत किसे कहते हैं? आदतें बनाई जाती हैं, फितरतें बन के आती हैं। मसलन हम 13 साल की उम्र में हुए, कबला नए नए जवान हुए, खून ने बलबला मारा, जोश मारा। अब मालूम ही होगा कि सर्किल बनी, चौक पे, चौराहों पे, गली पे, मोड़ पे, सड़कों में इर्द गिर्द। अब सर्किल का आलम ये था कि दोस्त अच्छे भी होते हैं, दोस्त बुरे भी होते हैं। मेरे मौलाना नजरुल बलागा में इरशाद फरमाया कि बुरा दोस्त एक कोयले की तरह है, जो खुद भी काला है, तुम उठाओगे तुम्हें भी काला कर देगा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरीके से एक जंगाही तलवार हो, जब तक मयान के अंदर रहती है लोग खौफजदा होते हैं, जब मयान से निकल जाती है तो तुम्हें जेल के अंदर डाल देती है। ये मेरे मौला का जुमला है और मेरे मौला ने इसे इरशाद फरमाया है। अच्छा, अब सर्किल पड़ी, आदतें देखिए किसे कहते हैं, मेरी तरफ तवज्जो रखिए। आदत, अब सर्किल बना बढ़ा, दोस्त ने पहले खैनी बनाया, हमने खैनी नोश फरमाया। उसके बाद दोस्त ने हमें एक सिगरेट दिया, हमने पूछा ये क्या है? कहा सिगरेट है। हमने कहा अच्छा ये तस्वीर नहीं, हमारी माँ ने मना किया है, घर वाले देख लेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा एक कश पी लो, देखो अच्छा लगे तो पीना, ना लगे ना पीना। अच्छा अब दिया सिगरेट, एक कश पी, दे दिया, नहीं अच्छी नहीं लगी, कुछ दूर चले फिर लिया, एक कश और देख लेते हैं शायद अच्छी लगी, एक कश फिर पिया। अब आलम ये हुआ कि अच्छी लगने लगी। अब माशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीकात में नमाज के बजाय सिगरेट में दे दिया। अब एक कश के बजाय अगले दिन एक पे आ गया, और तौफीकात में इजाफा हुए, एक से अगले दिन 2 पे आ गए, 2 के बाद 3 पे आ गए, 3 के बाद 4 पे आ गए, 3 के बाद 4 पे आ गए। अख्तर भाई समझ सकते हैं, 3 के बाद 4 पे आ गए, 4 के बाद 5 पे आ गए, 5 के बाद 6 पे आ गए। अब उसके बाद तौफीकात में इजाफा
कश से काम नहीं चलता, अब एक सिगरेट से काम नहीं चलता। अब हमारे भैया को अब एक सिगरेट का डिब्बा चाहिए। भैया अब क्या आलम है, अब कश पे दिन नहीं गुजरता, अब एक सिगरेट पे दिन नहीं गुजरता, अब एक कश चाहिए नहीं बल्कि अब एक डिब्बा चाहिए। आलम ये हो गया कि अब एक डिब्बे पे आ गए, ये आदतें बनती चली गई। पहले कश से एक पे आए, एक से दो पे आए, दो के बाद तीन पे आए, तीन के बाद डिब्बे पे आ गए। घर वालों को पता चला, घर वालों ने मारा और मारने के बाद छोड़वाना चाहा, तो अब आपने पहले डिब्बा छोड़ा, उसमें से एक दिन 10 पिया, फिर 9 पिया, फिर 8 पिया, फिर 7 पिया, फिर 6 पिया, फिर 5 पिया, फिर 4 पिया, फिर 3 पिया, फिर 2 पिया, फिर 1 पिया। अब आलम ये हुआ एक के बाद कश पे आए, ज्यादा हुआ चुनारी बन गए, गंजेड़ी बन गए, शराबी बन गए, बदबख्त बन गए, गलीज बन गए, तलीज बन गए, गिरे हुए इंसान बन गए, तो सिगरेट से बीड़ी में आ गए। आलम ये हुआ बीड़ी के बाद धीरे धीरे आप लौंग पे आए, लौंग पे इलायची पे आए, इलायची के आने के बाद सौंफ पे आ गए। यानी जो आदतें आपने बनाई थी, तो आपने आदतों को पैर के नीचे झूठी बना के रौंद दिया, यानी आप वही वाले इंसान बन गए। लेकिन ये आदतें थी जो बनाई भी जाती है और मिटाई भी जाती है, लेकिन फितरतें ऐसी हुआ करती है जो फितरत बनाई नहीं जाती है, बल्कि अल्लाह फितरत बना के भेजता है। मसलन हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही रोने लगा, हमने नर्स से पूछा रो क्यों रहा है? रोना तो बिदअत है। हाय 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 नौजवानों, रोना तो बिदअत है। नर्स ने एक मरतबा छापा मार के कहा जाकिर होगा तू मेंबर के लिए डॉक्टर नहीं बन सकता। हमने कहा मसला क्या है? काजी वो गरीब बात करता है, बच्चा की आदत में रोना नहीं है, बच्चे के फितरत में रोना है। हमने कहा अगर हंसते हुए पैदा हो जाए तो क्या बुरा है, रोते हुए क्यों पैदा हो रहा है? अच्छा रोया नहीं है। नर्स ने कहा अगर रोते हुए पैदा नहीं होगा तो घर वाले रोने लगेंगे, घर वाले रोने लगेंगे। दुनिया वालों अब पता चला कि समाज में जिंदा वही है जो आने मोहम्मद पे रोए। दुनिया को दावतें फिक्र देते हैं, तुम खुद भी रो, दूसरों को भी रुलाओ, ताकि पता चले कि समाज में तुम जिंदा हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फितरत में मोहब्बत रखा है और खुसूसन माँ। अब बुजुर्ग यहाँ से तजुर्बा करेंगे और हाथ उठा देंगे, समझूंगा कि बात पहुँच गई। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं सिर्फ हाथ उठा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि रिमोट से म्यूट कर दिया गया। माँ की आदत में शामिल नहीं है, बल्कि माँ की फितरत में शामिल है। हम अपने घर में सफेद चादर तान के सो जाए, मेरी तरफ देखिए, हम अपने घर में अगर सफेद चादर तान कर सो जाएं और खुदा न खास्ते हमारी माँ का गुजर हो जाए, तो माँ एक मरतबा जैसे ही देखती है कि मेरा बेटा कहीं मैं और ले जाने वाला हूँ, जैसे ही देखती है कि मेरा बेटा सफेद चादर में सोया हुआ है, एक मरतबा माँ की फितरत ने करवट पलटी और पलटने के बाद एक मरतबा हाथों को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद चादर को खींच के एक झापड़ मारा और मारने के बाद कहा बेटा आइंदा जनाजे की शबीह न बनना, बेटा आइंदा जनाजे की शबीह न बनना, बेटा आइंदा जनाजे की शबीह न बनना। क्यों? क्योंकि माँ की आदत में शामिल नहीं थी, माँ की फितरत में शामिल थी बेटे की मोहब्बत। हमारी ईमानदारी से बताइएगा जरा मेरे नौजवानों, मेरी तरफ तवज्जो रहिए, अगर हम अपने घर में सफेद चादर तान के सो जाए और हमारी माँ का गुजर हो जाए, तो माँ झापड़ मार के कहती है बेटा आइंदा जनाजे की शबीह न बनना, क्योंकि माँ की आदत में शामिल नहीं थी, माँ की फितरत में शामिल थी बेटे की मोहब्बत। तो मौलाइयों जरा मुझे बताओ, क्या माँ की आदत में शामिल नहीं है, माँ की फितरत में शामिल है, तो फिर वो मदीने की कैसी माँ थी जो अपने बेटे को जाली मुर्दा बना के
آپ کہہ رہے تھے کہ ماں کی عادت میں شامل نہیں ہے، ماں کی فطرت میں شامل ہے بیٹے کی محبت، تو پھر وہ مدینے کی کیسی ماں تھی؟